السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ہے بے قدر عشق میں، قسط نمبر 8۔ چھی، تمہاری آواز نہ نکلے۔ کبھی شاہ وردہ کو دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ وردہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سامنے اس کے منہ کو زور سے دباتے کبھی شاہ کھڑا تھا۔ ہاں، وہ پہنچ چکا تھا اس تک۔ کبھی شاہ کی انگلیاں اس کے چہرے کی ہر نقش کو چھو رہی تھی۔ تم بہت حسین ہو، اس نے مدہوشی سے کہا۔ وردہ نے آنکھیں زور سے بند کی تھی۔ اس کے ہونٹ کبھی شاہ کے ہونٹوں میں مقید ہو چکے تھے۔ وردہ نے مزاحمت کی لیکن وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ اس سے الگ ہوا۔ وردہ رو رہی تھی۔ نہ میری جان، رونا نہیں۔ ابھی تو بہت کچھ سہنا ہے تم نے۔ وہ ابھی بھی اسے دیوار کے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ کل کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ظالم انسان؟ وردہ خوف سے بولی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے وردہ میری جان۔ میں تمہیں گھونٹ گھونٹ پینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے اندر سمیٹنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے کوئی اتنا پیارا لگا ہے، لیکن تم مجھ سے بھاگ کر کرم سے شادی کا سوچ رہی ہو۔ وہ غصے سے دہڑا لیکن آواز ہلکی تھی۔ میری شادی ہے، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ مجھ سے بے حد خوف زدہ تھی؟ کیوں؟ اس نے غصے سے ہاتھ دیوار پر مارا۔ کیا کمی ہے مجھ میں جو تم مجھ سے دور بھاگی؟ میں بھی تو تم سے شادی ہی کرنے والا تھا، پھر کیوں تم مجھ سے دور ہوئی؟ کیوں؟ وہ گرایا۔ بھائی جی، کیا میں اندر آ جاؤں؟ آپ نے بات کر لی وردہ سے؟ کرم کی آواز آئی۔ کبیشہ نے فوراً ہاتھ وردہ کے منہ پر رکھا۔ آواز نہیں نکالی۔ وہ غصے سے بولا، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تم میری بات تو مکمل ہونے دو۔ آخر کو ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ کبیشہ کا لہجہ ایک دم بدل گیا تھا۔ او بھائی جی، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے 1 گھنٹے کے لیے جانا ہے، ضروری کام سے۔ آپ آرام سے بات کریں، پھر آرام کر لیجیے گا۔ تھوڑی دیر رات کو فنکشن ہے، آپ تھک جائیں گے، محبت سے چور لہجے میں بولا، لیکن وہ اندر نہیں آیا تھا۔ کبیشہ وردہ کو ابھی بھی دیوار سے لگائے کھڑا تھا۔ ہاں ہاں، تم آرام سے جاؤ، میرے شہر نے بھی بس 10 منٹ تک جاتا ہوں۔ کبیشہ نے مکروہ ہنستے ہوئے کہا تو وہ جی بھائی جی کہتا نیچے چلا گیا، جبکہ وردہ نانا میں سر ہلا رہی تھی اور شاید خوف زدہ تھی کہ وہ دروازہ کھول کر اندر آ جائے اور اس گھٹیا انسان کا اصل چہرہ دیکھ لے، لیکن وہ تو اس پر اندر اعتماد کرتا تھا اور وہ چلا گیا۔ او میری جان، اب بس بھی کرو یہ رونا دھونا، کیونکہ میں تمہاری ان پیاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ وردہ خوف سے سرخ ہو چکی تھی۔ غصہ بھی آ رہا تھا کرم شاہ پر۔ کم از کم اندر تو آ جاتا۔ کبیشہ کے ہاتھوں نے اس کی کمر پر رینگنا شروع کیا تو وہ کانپ گئی، لیکن سوائے رونے کے وہ کر بھی کیا سکتی تھی، جبکہ اس کے منہ پر ابھی تک کبیشہ کا بھاری ہاتھ تھا۔ وردہ نے بڑی مشکل سے خود کو اس سے دور کیا تو وہ پھر سے مسکرانے لگا۔ تم کیوں نہیں سمجھتی کہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، اپنے بھائی کا بھی نہیں؟ اور اس کے لیے مجھے اسے مارنا بھی پڑا تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ ہاں، وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ وردہ وہیں دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ شدت سے رو رہی تھی اپنی بے بسی پر۔ ابھی تو خوشیاں آئی ہی نہیں تھی کہ ختم بھی ہو گئی۔ وہ پھر سے خالی ہاتھ تھی، بے آسرا، بے پناہ کی تلاش میں۔ کسی بدمعاش آوارہ سے اپنی عزت بچاتی وہ پھر سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کیوں نہیں مر جاتی؟ اس نے روتے روتے سوچا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ کبیشہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کو وردہ کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ وہ دور ہو جائے، مجھ سے نفرت کرتی ہوں، تم سے نفرت کرتی ہوں میں، تم سے کبیشہ، نفرت۔ وہ چیخی تھی۔ وردہ مر تو سکتی ہے لیکن کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، کل جب تم بے ہوش تھی تو میں نے تمہیں یہاں پیار کیا۔ وہ انگلی ہونٹوں پر رکھتے بولا، یہاں بھی، بلکہ سارے جسم پر کبیشہ کی محبت کی مہر لگا چکا ہوں۔ چاہو تو دیکھ لو یہ پردے ہٹا کر، تم گھٹیا انسان ہو۔ وہ چیخی، مار دوں گا کرم شاہ کو، تم شادی کر کے دیکھ لو۔ تمہیں اللہ کا واسطہ کرم شاہ کو کچھ مت کرنا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے ان سے پناہ مانگی تھی، میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ اور لٹل گرل، تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بھی مدد کروں گا؟ اسے مننا ہوگا اور پھر تمہیں میرا ہونا ہوگا۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں بہت برا ہوں، اتنا برا کہ شاید ہی تمہیں کوئی مجھ سے برا شخص ملے، اور جو غلطی تم نے بھاگ کر کی ہے اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، اور تمہارے ساتھ کرم شاہ کو بھی۔ ویسے تو ایک بات بتا دو،
तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा धमाकेदार सरप्राइज़ है जिसे सुनकर यकीनन तुम्हें खुशी तो नहीं होगी, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी, इसलिए तैयारी मुकम्मल रखना मेरी जान। हिम्मत करके सुनना, बड़े पड़ेगा सच, वो शर्ताना अंदाज में बोला और फिर से इसके पास बैठ गया। फ़ोन की घंटी बजी तो इसने फ़ोन स्पीकर पर डाला। जी हाँ सर, एक मसला हो गया सर, करम को गोली लगी है। क्या? किसकी हिम्मत हुई मेरी जान से प्यारे भाई पर गोली चलाने की? मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, वो दहाड़ा। जबकि वर्दा को एकदम होश आया तो वो उड़ती बाहर को भागी। करम करम, वो चीखी। कबीशा भी बाहर निकला और गुस्से से दहाड़ा, गाड़ियाँ निकालो, मेरे भाई पर कातिलाना हमला हुआ है और जिसने ये किया है मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, चलो। वो सब भागते हुए बाहर गाड़ियों की तरफ जा रहे थे जबकि वर्दा इनके पीछे भाग रही थी, जिसे मुड़कर कबीशा ने देखा और मुलाजमा से कहा, पकड़ो बीवी को। तो इसने जल्दी से इसे पकड़ लिया। मुझे जाने दो, मुझे करम के बाद जाना है, वो ठीक नहीं है, इन्हें गोली लगी है। वो रोई जा रही थी लेकिन मुलाजमा ने इसे बाहर नहीं जाने दिया तो वो वहीं सोफे पर बैठ गई। वो आज वाकई खौफजदा हुई थी शख्स से जो अपने भाई तक को मार सकता था। हाँ, कबीशा ने किया है ये, वो बेगुनाह है, मैं कसूरवार हूँ, मैं नहीं रहूँगी यहाँ, दूर चली जाऊँगी इनकी ज़िंदगी से, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, नहीं करनी मुझे शादी। वो खुद से बोलते बोलते वहीं सोफे पर रोती हुई सो गई थी। इसे अपने चेहरे पर किसी का लम्स महसूस हुआ तो इसने आयशा से आंखें खोल कर देखा तो वो सामने इसके पास सोफे के ऊपर बैठे प्यासे चेहरे पर हाथ रख कर देख रहा था। आप आ गई, आप ठीक है? वो फ़ौरन इसे उठी थी करम को देखकर इतनी परेशान की हो गई थी। वो प्यार से बोला। इसके बाजू पर पट्टी बंधी थी और गले के साथ अटैच कर दी गई थी प्लास्टर के साथ की तरह, लेकिन चेहरे से तकलीफ के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। वो ठीक लग रहा था या शायद वो वर्दा को परेशान नहीं करना चाहता था। आपको गोली लगी है? वो फिर से रोने लगी थी। अरे अरे वर्दा, कुछ नहीं हुआ, बस गोली छू कर गुजर गई और बस, इसने वर्दा को साथ लगाते कहा तो वो इसके सीने पर सर रख कर रो दी थी। और यही मंजर बाहर से आते कबीशा को आग लगा गया था। कुछ ख्याल करो करमशाह, तुम इस वक्त बाहर लाउंज में हो, इस वक्त लाउंज में हो, अपने बेडरूम में नहीं, घर में मुलाजिम है। क्या सोचते होंगे? वो आते ही बरस पड़ा था जबकि वो फ़ौरन वर्दा से दूर हटा था और शर्मिंदगी से बोला, भाई जी आइंदा ऐसा नहीं होगा, जाओ वर्दा अपने रूम में जाओ, मैं आता हूँ अभी, और परेशान नहीं होना, रोना भी नहीं, मैं ठीक हूँ। वो प्यार से बोला तो वर्दा ने एक नज़र कबीशा को देखा जिसकी आंखों में एक तूफान था जो सब तबाह कर दे। वो कुछ बोले बगैर ऊपर चली गई और कमरे को लॉक कर लिया। इसे एक दफ़ा फिर से अपनी इज्जत के लाले पड़ गए थे। वो महफूज नहीं थी कबीशा के होते। वो कैसे महफूज रह सकती थी? वो बहुत खौफजदा थी क्योंकि कबीशा कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। वो फिर से उठी थी खिड़कियाँ बंद करने को, लेकिन वो तो पहले ही बंद कर चुकी थी। हाँ ये ठीक है, ठीक से बंद है, इसने खुद से कहा और फिर वो दरवाजे के साथ ही टेक लगा कर बैठ गई। आंसू तो खुद ब खुद ही बहने लगे गए थे। क्या मुझे ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी? रोने में शिद्दत आ गई थी। मैं करम से मोहब्बत नहीं करती, बस वो मेरा सहारा बन जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस जालिम से मेरी जान छुड़ा दे मेरे अल्लाह पाक। वो फिर से उठी थी क्योंकि अब दरवाज़ा बाहर से खोला जा रहा था। इसने जल्दी से चटकी चढ़ा दी थी लेकिन बाहर से मुसलसल हैंडल को घुमाया जा रहा था। भाई जी, मैं बड़ी अम्मा के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि इनको वर्दा से मिलवा सकूँ। वो बहुत खुश था। क्या तुम इस लड़की के बारे में कुछ जानते भी हो करम, या नहीं यूँ ही किसी को भी उठा कर इससे शादी का सोच रहे हो? जी भाई जी, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो अकेली है, इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं सहारा है। और क्या करमशाह हद करते हो, तुम भी इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और शादी का फैसला कर लिया? भाई जी, वो बहुत मासूम है, मोहब्बत अंधी होती है, ये तो सुना था, आज देख भी लिया। कबीशा गुस्से से बोला था क्योंकि इसे करम के मुंह से वर्दा की तारीफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। भाई जी, मेरा वो मतलब नहीं था, वो थोड़ा शर्मिंदा होता, आप वर्दा से पूछ लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इससे जो भी बात करें इसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए करें कि इसको बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो मुझे जिस तरह मिली थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो किसी से छुपी हुई थी, भाग रही थी किसी से। अगर इसका कोई होता तो वो इस तरह लावारिस सड़क पर नहीं होती। किससे भाग रही थी? कबीशा का रंग एक लम्हे में बदला था। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, लेकिन जो भी है मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा भाई जी। बाकी आप जैसे चाहें वर्दा से बात करें, मैं बाहर जा रहा हूँ, काम है, कुछ इजाज़त दें,
लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह कहाँ जाओगे? कोई बड़ी बात नहीं है भाई जी, बस मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है, फिर सारा वक्त घर पर ही हूँ। अच्छा जाओ और जल्दी वापस आ जाना। जी भाई जी कहकर वो बाहर निकल गया, जबकि इसका रुख अब वर्दा के कमरे की तरफ था। कौन है? वर्दा ने डरते डरते पूछा था। मेरे होते हुए मेरी जान के पास और कौन हो सकता है? वो बाहर से बोला था। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, जाओ यहाँ से। वो अंदर से ही चीखी थी। यह दरवाज़ा तुम्हें खोलना ही पड़ेगा लिटिल गर्ल, क्योंकि ये दरवाज़ा ज़मानत है करम शाह की। ज़िंदगी की जितनी देर लगाओगी इतनी ही इसकी सांसें कम होती जाएंगी। हाँ हाँ, वो कहका लगाते थोड़ा पीछे हुआ ही था कि वो दरवाज़ा खोले सुर्ख आंखों के साथ इसके सामने थी। तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया हो कबीशा, वो हल्की आवाज़ से मगर गुस्से से बोली थी। ओह माय लिटिल गर्ल, माय लव। वो बात करता करता कमरे के अंदर आ चुका था। आराम से इसने इसका हाथ पकड़कर पीछे किया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। आओ बैठो यहाँ और एक डील करो मेरे साथ। मैं ज़िंदगी बख्श दूँगा करम शाह की। तुम इससे शादी से इनकार कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो यकीनन ये काम भी मुझे करम शाह से करवाना पड़ेगा कि वो ख़ुद इस शादी से इनकार कर दे और फिर मेरी प्यारी सी लिटिल गर्ल को इस हवेली से निकाल बाहर करे। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्दा ने हल्का हल्का सर नाम हिलाया। वो ऐसा ही करेगा मेरी जान, जब इसे मैं तुम्हारा माजी खोल कर दिखाऊँगा, और ये भी कि तुम किसके साथ रात गुजार कर आई थी। और ये सुनने के बाद इसके होने वाली बीवी इसके बड़े भाई के साथ रात गुजारने के बाद इसके पास आई है, तो वो एक लम्हा भी नहीं लगाएगा तुम्हें बाहर करने में। अब वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा था, इसका जवाब दे रहा था, और अगले लम्हे वो इसे अपने बाहों में भर चुका था। वर्दा मुसलसल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी। मुझे मत आजमाओ वर्दा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें सारी दुनिया से छिपाकर अपने दिल में कैद कर लूँगा, किसी को भी तुम तक नहीं पहुँचने दूँगा। और इसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर चुका था। वर्दा की कोशिशें नाकाम हो जा रही थी, वो पागल हो रहा था। छोड़ो मुझे, वर्दा ने इसे पूरी ताकत से धक्का दिया। घटिया इंसान मैं हूँ जिसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जल्द बताऊँगा। बड़े बड़े कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वर्दा वहीं नीचे बैठकर रोने लगी थी। सर हम आज वापस जा रहे हैं, रात फंक्शन के बाद आपकी मीटिंग है और आप ये मिस नहीं कर सकते। यह सारे तमाम इंतजाम मुकम्मल करवा दो और मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए सर, आप बेफिक्र हो जाएं। जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा सर। आप मिस वर्दा को सच क्यों नहीं बता देते कि आप उनके नहीं आरस? अभी ये वक्त ठीक नहीं है और वो जिस हालत में है वो मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेगी, इसलिए वक्त बहुत ज़रूरी है और मैं इसे ये वक्त दूँगा, क्योंकि इसे आना तो कबीशा के पास है। इसकी ज़िंदगी का हर रास्ता कबीशा है और ये बात वो अभी समझना नहीं चाहती। सर आप सच बोलकर तो देखें। हारिस ने फिर से एक कोशिश की। आज वाली लड़की पहुंच गई फार्म हाउस? जी बॉस रास्ते में है। ओके, रात को मिलते हैं। इससे भी, लेकिन अभी अपनी लिटिल गर्ल को देख लूँ। वो डरती है मुझसे, जबकि हकीकत में कबीशा डरता है अपनी लिटिल गर्ल से। वो मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। करम क्या आ गया? इसने काम वाली से पूछा। नहीं बड़े साहब, अभी नहीं आए। अच्छा जाओ और बीबी को बुलाओ कि चाय के लिए आ जाए। जी साहब कहकर वो वर्दा के कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि वो सोफे पर बैठ गया, क्योंकि इसका दिल बेचैन था इसे देखने के लिए। बीबी चाय के लिए आ जाए। काम वाली ने आकर वर्दा को आवाज़ लगाई तो वो दरवाज़ा खोल के सामने हुई और हल्की आवाज़ से बोली, क्या करम साई आ गए? नहीं बीबी, वो बड़े साहब बुला रहे हैं। तो जाओ और जाके बोलो कि मुझे नहीं पीनी चाय और मुझे एक सर दर्द की गोली ला दो प्लीज़। जी बीबी कहकर वो वापस पलट गई, जबकि कबीशा को इसका जवाब देना ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगा था। वो फिर से उठकर इसके कमरे की तरफ जाने लगा था। बाहर से करम की आवाज़ आई तो वो रुक गया और मुस्कुरा कर करम को देखा, जो इसी के पास आकर बैठ गया था। वर्दा को भी बुला लो, वो भी हमारे साथ चाय पिए, कबीर ने करम से कहा। तो वो जी भाई जी कहकर इसे बुलाने चला गया और 2 मिनट के बाद इसके सामने थी। मुलाजमा ने गोली लाकर दी थी। कबीशा कुछ बेचैन हुआ, लेकिन करम की वजह से वो कुछ नहीं बोला। वर्दा ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास चलें। करम ने इसे मेडिसिन खाते देखकर कहा। नहीं, बस हल्का सा दर्द है, टैबलेट ले ली है, आराम आ जाएगा, रात का फंक्शन अटेंड कर सकोगी। कबीशा ने टोका। मुझे नहीं पता, इसने आराम से कहा और नज़र उठाकर कबीशा को देखा जो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। करम मुझे आकर कमरे में मिलो कहता वो अपने कमरे में चला गया, जबकि वर्दा ने चोर निगाहों से इसे देखा। जब वो आंख मारता ऊपर चला गया और वो सर झुकाकर बस चाय पीने लगी
तो जी कबीशा पहुंच गया वर्दा के पास। अब भाई जी आपने बुलाया? यहाँ आओ बैठो, मैं रात में फंक्शन के बाद वापसी के लिए निकल जाऊँगा। क्यों भाई जी, कुछ दिन तो रुके? नहीं, मैं नहीं रुक सकता, तुम्हें मालूम था अम्मा जी की तबीयत नहीं ठीक भाई जी। वजह कैसी लगी आपको? कर वो बड़ी है तुमसे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है भाई जी? 8-10 साल से पागल नहीं बनो, बहुत फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी मैं कराची में तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर चुका हूँ। नहीं भाई जी, मैं सिर्फ वर्दा से शादी करूँगा। वो गुस्से से बोला। अगर ऐसा ना हो सका तो ऐसा मत बोले, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। कबीशा परेशानी से बोला। समझने की कोशिश करो करम, ये नामुमकिन है। क्यों भाई जी? क्यों नामुमकिन है? मैं वजाहत नहीं देना चाहता। मैं अम्मा जी से बात करता हूँ जाकर, तब तक तुम इससे दूर रहना। बल्कि मैं इसे साथ ले जाता हूँ, अम्मा भी मिल लेंगी, मैं भी साथ चलता हूँ। फिर यहाँ सब कौन देखेगा? मैं इसे साथ लेकर वापस आ जाऊँगा। करम शाह तुम बात को समझते क्यों नहीं? वो गुस्से से बोला। मैं नहीं समझ पा रहा कि मसला क्या है। वो भी गुस्से से बोला। कबीशा को पहली दफ़ा करम शाह से खौफ महसूस हुआ था। वो वाकई बड़ा हो चुका था। अगर अम्मा को भी एतराज़ हुआ तो तुम क्या करोगे? मैं आपकी बात मान लूँगा। ओके जाओ, तैयारी करो, वर्दा को कहो हम जा रहे हैं। लेकिन मैं इस निकाह के हक़ में नहीं हूँ। जो लड़की मैं पसंद कर चुका हूँ, तुम्हारी शादी इससे ही होगी। मैं वर्दा से शादी करूँगा, बस लगाऊँगा 2 हाथ कान के पीछे तो सारी आशिकी निकल जाएगी। कबीशा गुस्से से रहा तो करमशाह खामोश से बाहर निकल गया। सीढ़ियों उतरते हुए इसे वर्दा नज़र आ गई। वर्दा? जी साईं सरकार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि आपके भाई जी को मैं पसंद नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस उम्र की वजह से नहीं मान रहे। तो कोई मसला नहीं, मैं आपका कर्ज अदा करते ही चली जाऊँगी। हम कराची जा रहे हैं बड़ी अम्मा से मिलने। अगर इन्हें भी पसंद नहीं आई तो नहीं, वो मान जाएंगी। साईं सरकार, मैं कहीं नहीं जा रही, आप मेरा पीछा छोड़ दें और यहाँ मर्जी शादी कर लें। पीछे खड़ा कबीशा बाजू सीने से लगाकर इसे इशारा दे रहा था कि वो कराची जाकर इसके साथ क्या करेगा। वर्दा मेरी बात। लेकिन वो किचन में जा चुकी थी। करमशाह गुस्से से बाहर गया जबकि कबीशा किचन में चला गया। जी बड़े साहब, वसई ने हैरानगी से पूछा। वसई साईं सरकार और वर्दा बीबी की पैकिंग कर दें, हम कराची जा रहे हैं। जी बड़े साहब कहती वो बाहर निकल गई, जबकि कबीशा ने बाकी 2 मुलाजमों को भी बाहर भेज दिया कि अंदर कोई ना आए। वर्दा खीर में चम्मच चलाई जा रही थी जब कबीशा ने इसे पीछे से पकड़कर साथ लगा लिया और इसके हाथ पर हाथ रखकर चम्मच चलाने लगा। हम जा रहे हैं कराची रात में और लिटिल कोई एतराज़ नहीं है। मुझे इतराज़ क्यों जाऊँ? मैं तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊँगी। इसके गर्दन पर लब रखते हुए मुस्कुराता हुआ बोला। तो करमशाह को मार देते हैं, फिर मैं आराम से उठा कर ले जाऊँगा। तुम एक घटिया इंसान हो, जबकि साईं सरकार एक शरीफ इंसान है। फिर तो तुम कभी नहीं चाहोगी कि तुम्हारी वजह से एक शरीफ इंसान मारा जाए। मैं इन्हें बता दूँगी सब कुछ, लेकिन कराची नहीं जाऊँगी। मैं अभी के अभी इसे 2 माह के लिए भेज देता हूँ और मैं यहाँ ही रुक जाता हूँ। कल परसों शादी करेंगे और फिर दोनों मिलकर मज़े लौटते हैं। वर्दा लाल हुई थी गुस्से से। तुम कोई इंतहा के बेशर्म इंसान हो, छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई। जब कबीशा इसे और साथ लगा गया, सारा गुस्सा इसके होंठों पर उतारते हुए पीछे हटा और बोला, तैयारी कर लो, ड्रेस रखा है बेड पर, पहन लो, हम जा रहे हैं। और अब इनकार किया तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा करम को ऊपर पहुंचाने में। वर्दा चूल्हा बंद करते ऊपर भाग गई, जबकि वो बाहर निकल गया। भाई जी, वो वर्दा नहीं मान रही जाने के लिए। वो मान जाएगी तो मनाओ इसे जाकर, कहता वो अपने कमरे में चला गया। वर्दा करमशाह कमरे में दाखिल हुआ तो वो फर्श पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ? साईं सरकार, आप मुझसे शादी ना करें, बस मुलाजमा बनकर रख लें यहाँ। लेकिन मैं चुप, बिल्कुल चुप। जब कहा है भरोसा रखो मुझ पर, फिर रो क्यों रही हो? मैं तैयार हो जाऊँ, फिर निकलना है, तुम भी तैयार हो जाओ। वर्दा कबीशा का लाया जोड़ा नहीं पहनना चाहती थी, लेकिन करमशाह की ज़िंदगी के लिए इसे पहनना पड़ा। वो तैयार होकर नीचे आई तो कबीशा तो इसे देखते ही रह गया। सारे मर्दों का इंतज़ाम बाहर था, औरतों में तो सिर्फ वर्दा ही थी जो तैयार होकर हॉल में बैठी थी। करमशाह तो सबके साथ मसरूफ़ था, लेकिन कबीशा तो बस पागलों की तरह इसे मौके के इंतज़ार में था जब वो इसे बाहों में भरेगा। फिर वो आ ही गया अंदर। वर्दा तो इंतज़ार कर करके थक के कमरे में जा चुकी थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो वो चिल्लाई, लेकिन इसके कुछ बोलने से पहले ही वो इसे सीने से बीन चुका था। छोड़ो मुझे, वो ज़हमत कर रही थी, लेकिन कबीशा को होश कब था। मिनटों में वो इसकी सारी लिपस्टिक मिटा चुका था। जब मुझे नहीं पता
था कि ये ड्रेस मेरी जान पर इतना अच्छा लगेगा। वो मदहोशी से बोलता है, एक दफ़ा फिर इसे चुप करवा गया। करमशाह को खुद से दूर रखो वरना पता नहीं मुझसे क्या हो जाएगा। वो अब भी इसे खुद में विंचे हुए था, ऐसा ही रहना कराची तक, कहता वो बाहर निकल गया। रात को वो सब कराची के लिए निकल चुके थे। कबीशा के साथ हारिस था, जबकि करमशाह के साथ वर्दा। वो इसी ड्रेस में थी। इन्हें रास्ते में एक बहुत अहम मिशन मुकम्मल करना था। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ निकले थे और फिर गाड़ी एक बड़े शानदार होटल के बाहर आकर रुकी। करम फ़ौरन अंदर जाओ, कबीशा बोला तो करम ने कहा, वो वर्दा, इसे मैं ले आता हूँ, वक्त नहीं है, जल्दी करो। करम और हारिस अंदर चले गए, जबकि कबीशा करमशाह की गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में बैठकर इसने मोहब्बत से चूर नज़रों से सोई हुई वर्दा को देखा, जो अभी भी गहरी नींद में थी। इसके लबों पर झुकते उसके सांसें पीते चला गया। जब वर्दा की आंख खुली तो वो खौफजदा हो गई। मैं हूँ लिटिल गर्ल। कबीशा करम कहाँ है? वो खौफ से बोली। वो तब तक ठीक है जब तक तुम मेरे साथ ठीक हो मेरी जान। इन्हें कुछ नहीं कहना प्लीज़। वो खौफ से बोली। नहीं कहूँगा। अगर तुम शादी से इनकार कर दो और बोलो कि तुम्हें कबीशा पसंद है, मोहब्बत है कबीशा से, मैं कह दूंगी। आप इन्हें मत मानना। इसने बाहर खड़े गनमैन्स को देखकर कहा, चलो अंदर, यहाँ बहुत खतरा है। वो इसे साथ लेता लिफ्ट में आया और ऊपर वाली मंजिल पर बने कमरे में ले आया। कमरे का दरवाज़ा खोलते वो मुस्कुराता अंदर दाखिल हुआ। करम किधर है? वर्दा ने खौफजदा नज़रों से देखा तो वो इसे पकड़ते दीवार से लगा गया। मेरे होते हुए किसी और की ज़रूरत क्यों महसूस होती है तुम्हें लिटिल गर्ल? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझे महसूस करो। वो सरगोशी से बोला था, मुझे सबसे ज़्यादा खौफ तुमसे महसूस होता है। वो गुस्से से बोली थी, तो फिर प्यार किससे महसूस होता है? करमशाह से। मैंने इन्हें कभी नहीं कहा कि मुझे इनसे मोहब्बत है, मैं तो सिर्फ तुमसे निजात चाहती हूँ। अच्छा तो बताओ ना किससे मोहब्बत है? मैं तुम्हारी जवाबदार नहीं हूँ। वो चबा कर बोली, तुम मेरी ही हो। तुम मेरी ही तो जवाब दो हो लिटिल गर्ल। सिर्फ कबीशा को। मैं ये सारा ड्रामा करमशाह को ख़त्म करने के लिए ही तो कर रहा हूँ। वर्दा की आंखें खौफ से बड़ी हुई थी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ साई सरकार की ज़िंदगी की, इनकी ज़िंदगी के लिए तो मैं आज यहाँ हूँ तुम्हारे साथ इस कमरे में। मुझे नहीं मालूम तुमने साई सरकार को कहाँ भेजा है, लेकिन तुम्हें अल्लाह का वास्ता इन्हें कोई नुकसान न पहुँचाना। एक शर्त पर बोलो, मंजूर है? मैं तुम्हारी हवस का निशाना बनने वाली नहीं हूँ कबीशा। तुम मुझे सिर्फ इसके लिए कराची वापस लेकर जा रहे हो ताकि जो काम इस रात मुकम्मल नहीं हो सके वो मुकम्मल कर लो। मेरी इज़्ज़त के साथ खेल सको, तुम इज़्ज़त हो कबीशा की लिटिल गर्ल। बोलो, शादी करोगी मुझसे? वर्दा खामोश हो गई थी। जब हिम्मत होगी तब बताना, मैं करूँगी शादी तुमसे। मैं तैयार हूँ, तुम सारी सरकार को जाने दो। वर्दा की गालों पर हल्का सा दांतों से काटते वो खुश हुआ था, नहीं करता कुछ। जाओ, लेट जाओ और अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। वो लैपटॉप ऑन के कुछ करने लगा था। इसकी उंगलियां स्पीड से चल रही थी। बीच बीच में इसकी वो तकियों से मूंछ पायलटी पर्दा पर डालकर मुस्कुरा देता। जब इसे कान में हारिस की आवाज़ सुनाई दी, सर हम रेडी हैं, सब कुछ कवर कर लिया है और इनकी गाड़ियाँ निशाने पर है। कितने दूर है? और रोड क्लियर है? होटल से 3 किलोमीटर दूर है जी, क्लियर है। ऑर्डर दो, कहता वो अपनी जगह से तेज़ी से उठा था। जब ज़ोरदार धमाके की आवाज़ से वर्दा चीख पड़ी थी, लेकिन इसकी चीख कबीशा के होंठों में मकीद हो गई थी। डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पास। वर्दा तो रो पड़ी थी। धमाका हुआ है? हाँ मेरी जान, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, हम ठीक हैं। जब होटल के बाहर फोर्स की गाड़ियों के साइरन बजे थे, कबीशा लम्हों में वर्दा को अपने ऊपर गिराता बेड की साइड पर लेटा था। होटल के शीशे चकनाचूर होकर अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहे थे। बरसती गोलियां ज़ोरदार थी। कबीशा मुसलसल बोल कर बता रहा था इसे होटल की पूरी तरह से मालूमात थी। हारिस को रास्ते समझाता वो प्रोफेशनल लग रहा था, जबकि वर्दा अभी भी इसके ऊपर थी। जब भी वो गोली लगने की आवाज़ से चीखती वो इसके अपने लबों में दबा लेता। मेरी डरपोक लिटिल गर्ल, इसने इसे छेड़ते हुए कहा, खुद तो बहुत बहादुर हो, यहाँ नीचे छुपे हुए हो। वर्दा ने गुस्से से कहा तो कबीशा का जानदार कहका गूंजा, बहुत आसान फरमाइश हो तुम लिटिल गर्ल, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, समझी? सब समझती हूँ मैं। जब एक और ज़ोरदार धमाका हुआ और वर्दा ज़ोर से कबीशा के साथ लिपट गई। कबीशा का दिल किया, हर 2 मिनट के बाद धमाका हो। डर लग रहा है? बहुत प्यार से बोला। हाँ बहुत, वर्दा ने डरते डरते कहा। मेरे होते हुए भी? क्यों? आप मेरे छोटे साहब हो, जिनके होते मुझे डर नहीं लगता।
تھا؟ ہاں میں ہی تو ہوں تمہارا چھوٹا سا، وہ ٹرانس کی حیثیت میں بولا۔ تم محبت کرتی ہو اپنے شوہر سے؟ وردہ خاموش رہی تھی۔ بتاؤ نا، کیا تم مجھے چھوڑ دو گے پھر؟ ہاں میں کچھ نہیں کہوں گا، بتاؤ۔ میں نے آج تک صرف اور صرف اپنے چھوٹے صاحب سے پیار کیا ہے، عشق کرتی ہوں تو کرم شاہ سے شادی مجبوری ہے میری، میرے چھوٹے صاحب نہیں رہے اور مجھے تو تم جیسے انسان سے یہ ناممکن ہے، اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ویسے تمہارا شوہر کیسا تھا؟ تمہارے جیسا تو بالکل بھی نہیں تھا، وہ غصے سے بولی جب وہ اسے پھر سے خود میں بینچ کیا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی، بہت شوق ہے گولی کھانے کا۔ تمہارے جیسی تو نہیں ہوں جو چھپ کر بیٹھ جائے۔ وہ ہلکی سی اوپر ہوئی تھی جب دوبارہ سے ایک سنسناتی گولی اوپر کسی شیشے کو لگی تھی۔ وردہ کی ایک دفعہ پھر سے چیخ نکل گئی تھی، جبکہ کبیشہ کا کہہ ڈرپوک طے کرنا کھولتے حارث نے اسے بتایا تھا۔ جب وہ تیزی سے اٹھتا، لیپ ٹاپ آن کیے کچھ کرنے لگا، وردہ سمجھ سکتی تھی وہ ڈائریکشن بتا رہا ہے۔ تم کیا کرتے ہو عورتوں کی عزت پامال کرنے کے علاوہ؟ وردہ کے سوال پر مسکرا دیا۔ ایک لڑکی سے عشق، تم جیسے لوگ ایک لڑکی پر نہیں رہتے۔ ہم کیوں نہیں رہتے؟ جنہیں جگہ جگہ منہ مارنے کی عادت ہو۔ بات تو اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ کبیشہ نے تو صرف ایک ہی ذائقہ چکھا ہے آج تک۔ لٹل گرل، پیچھے رہو مجھ سے۔ وہ پھر سے چلائی، کام کرنے دو کہتا وہ اسے چپ کروا گیا۔ رات گزر رہی تھی، وردہ تو وہیں سو گئی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ جاگ نہیں پا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے بی پی لو ہو۔ کبیشہ اپنے ساتھ ہی بے خبر سوئی متا جان کو دیکھ کر مسکرا کر پھر سے لوکیشن بتانے لگتا۔ جب اسے کرم کی آواز سنائی دی، بھائی جی، وردہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے کہتا وہ حارث سے مخاطب ہو چکا تھا۔ ان کے کام میں کسی کو یوں ساتھ لانا الاؤ نہیں تھا، لیکن مجبوری نہ ہوتی تو وہ وردہ کو ساتھ نہ لاتے۔ کام کرتے کرتے وہ رک کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا جب وردہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ لمٹ میں رہو۔ بتاؤ اپنی لمٹ۔ معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی جب تم مجھ سے ٹکرائے۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ ہاں بتا دو۔ میں نے آئی جی مار دیا۔ وردہ کی چیخ ایک دفعہ پھر سے بلند ہوئی۔ جانتی ہو نا کون تھا آئی جی؟ کون تھا؟ جس کی وجہ سے تارا بھائی نے تمہیں اس رات میرے فارم ہاؤس بھیجا تھا۔ کیسے مارا؟ جلا دیا۔ زندہ؟ ہاں تو کیا مردہ جلاتا؟ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ شاک میں تھی۔ میں اس سے بھی زیادہ ظالم ہوں وردہ کبیشہ، اگر تم اپنی بات سے مکر گئی تو یاد رکھنا میں نہیں مکروں گی، وہ خوف سے بولی۔ تو کبیشہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، تم تو میری اعتبار ہی نہیں کرتی۔ اور پھر کرم، یا اللہ کیا کروں؟ وہ کام کرتے مسلسل سوچ بھی رہا تھا کہ کیسے وہ یہ سب سنبھالے گا۔ اس کا واحد راستہ یہی تھا کہ وردہ انکار کر دے، اور وہ اس سے انکار کروا کر رہے گا۔ فورسز نے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ سامنے نہ پہلے کبھی گیا تھا اور نہ آج ہی وہ کسی کی نظروں میں آیا تھا۔ اپنا پورا کام وہ کر کے دیتا تھا اور آخر تک ساتھ رہتا تھا، لیکن ایسی ہی کسی جگہ پر جہاں اسے کوئی بھی نہ دیکھ سکے۔ ساری رات کے آپریشن کے بعد صبح کا وقت ہوا چاہتا تھا جب وہ سرخرو ہوئے تھے۔ کبیشہ بھی باہر جا چکا تھا۔ مرد، عورتوں اور بچوں سمیت انہوں نے 50 لوگ یازیاب کروائے تھے۔ 14 سالہ لڑکیاں دیکھ کر کبیشہ نے ایک دفعہ پھر سے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے اسے ہمت دی تھی۔ کرم شاہ تو وردہ کو سوئی ہوئی دیکھ کر باہر نکل گیا تھا، کیونکہ اب انہیں آگے کے کام کو بھی دیکھنا تھا۔ ناشتہ کرتے وہ اوپر آ گیا تھا۔ وردہ کو بھی ناشتہ کروا کر وہ جلد نکلنا چاہتے تھے۔ کرم شاہ تو کبیشہ کے خوف سے وردہ کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا بھائی جی کو جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، تو اس کا مار کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ صبح صادق کے بعد سے انہوں نے دوبارہ سے سفر کا آغاز کیا۔ سر، آپ میم کو سچ کیوں نہیں بتاتے؟ ایک دفعہ پھر سے حارث نے کوشش کی۔ کیسے بتاؤں؟ جو وہ مجھے سمجھتی ہے وہ غلط فہمی ہے، کیسے دور کروں؟ اور کرم کو کیسے سمجھاؤں؟ ویسے میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ حارث کمینگی سے مسکرا کر بولا۔ بتاؤ۔ حارث کے بتانے کے بعد وہ مسکرا کر بولا، تم بھی بہت بڑے کمینے ہو حارث۔ وہ تو میں ہوں سر، ویسے میم ہیں بہت پیاری۔ کبیشہ نے گور کر حارث کو دیکھا۔ اب اگر اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو تیری آنکھیں نوچ لوں گا کمینے۔ سر، میں نے تو بڑی بہن کی حیثیت سے کہا ہے، اب وہ اتنی بھی بڑی نہیں کہ تمہاری بڑی بہن بن جائے۔ حد ہے ویسے سر، آپ تو بالکل ہی نکارا انسان ہیں عشق کے معاملے میں۔ مجھے پٹیاں نہ پڑھا، چل سو جا چپ کر کے، ورنہ میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے صلاح دینا ہے۔ میم پیاری ہیں آپ سے زیادہ۔ کرتا ہے بکواس بند کر
बंद के लगाऊं 2 हाथ, कर दी कहते वो दोनों मुस्कुरा दिए थे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए एंड लाइक भी। थैंक यू सो मच।